हेलो टू ऑल, सो वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? यस, सो वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ द नवंबर सेशन that is from the structure analysis, and in the structure analysis we were discussing the moment distribution method, है ना। और moment distribution method में हमने देखा है कि कैसे हम carry over moment, carry over factor regarding we have discussed stiffness, distribution factor, we have solved many questions also, हमने conventional questions भी देखा है, right? and वो सारे चीज आप previous videos में जाके देख सकते हो अगर आपने मिस कर दिया है तो, right? Today's topic is to find the moment to use the moment distribution method using symmetry. Symmetry use करके आप moment distribution method कैसे अप्लाई करोगे वो हम देखने जा रहे हैं, right? So जो भी लोग नए नए जुड़े हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो and hit the bell icon ताकि you get the notification of whatever the video जो आपको आने वाले होंगे फ्यूचर में, right? So ये जो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ लो, दिस यू आर स्टडीइंग बोथ फॉर द गेट एंड डीएसई। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, जो लोग अभी अभी चैनल पे जुड़े उनके लिए बता दूं, माई सेल्फ अभिषेक भारती, द हेड ऑफ दिस अनअकैडमी गेट सी चैनल, राइट? एंड मैं 5 साल से टीचिंग कर रहा हूं, टीचिंग सिंस 5 years, एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आई हैव टॉट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ऑलरेडी यू आर स्टडीड ऑन दिस चैनल, ओके? देन we are studying the structural analysis currently, okay? Then on the open channel flow, if I look at the open channel flow, crash course on open channel flow, crash course on open channel flow is going on in the special class, is going on in the special class. 4 weeks are completed, 4 weeks are completed, 1 week left, 1 week left. That is on the next Sunday, that is on the coming Sunday I will complete this, right? So you can see this in the special class on the Unacademy, that is free of cost, you don't have to pay anything for this. And another, the crash course on CPM and PERT, the crash course on CPM and PERT, right? This is also completed, so you can go to my profile. You can see this profile, go to visit this profile, right? Type this URL on your laptop, on your Google Chrome or any Chrome you are using, and you can see the lectures, all the special class links, right? And if you want to go for the subscription of the Unacademy Plus, use the code that is BHAR10. Use the code that is a BHAR10. I always tell BHAR10 is not just a code, it is an emotion which connect me and you with the Plus platform. Right? Because when you use this code BHAR10, this is not just a code. This is not just a code. ये आपको लाइव क्लासेस तो दे ही रहा होगा प्लस पे, बट साथ ही साथ you will get the crash courses, you will get the weekly test. हर 7वें दिन आपका टेस्ट होता है. There is a separate doubt solving batch, जहां पे अभी आप देखोगे कि करेंटली अभी गेट 21 आने वाला, आप देख सकते हो सिविल के लिए सेपरेट डाउट बैच बनाया गया है जहां पे आपके सिर्फ और सिर्फ डाउट्स लिए जा रहे हैं. एंड the second thing is, if I talk about this, कि हर 4th class is a doubt solving batch, right? The classes are there both in English and Hindi. English and Hindi दोनों में classes चलता है. There's the rank improvement batch going on जहां पे आप number of questions practice कर सकते हो. Okay. Now apart from this, अगर आप Iconic के लिए जाते हो, then in the Iconic you get a personal trainer, personal coach who will be setting your plans for the study. He will be giving you the rank study booster sessions, where he will be telling you about the different questions, guiding about the different questions, right? He will give the personalized test analysis कि आपको कैसे questions आएंगे and everything, right? तो अगर आप प्लस के साथ, if you can join the Iconic, that would be a better. Okay. Now, currently on the Unacademy Plus, 3 things are going on by me. One is the geotechnical engineering, that is a comprehensive course, complete course, detailed course. The other is the structure analysis crash course, right? And the next is a doubt batch. As I told, there's a doubt batch going on. Okay. So let's start this. So today we are going to discuss this using the symmetry. Today we are going to discuss this using the symmetry. Symmetry use करके कैसे आप किसी भी पॉइंट पे मोमेंट बता सकते हो या फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, एक एक चीज हम देख रहे होंगे, राइट? सो सिमेट्री मतलब क्या? व्हेन यू ड्रॉ द सेंटर लाइन, आपको मिरर इमेज दिखना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री.
अगर आप सेंट्रल लाइन बनाते हो तो अबाउट दैट सेंट्रल लाइन यू सी द मिरर इमेज. इज इट क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री. ओके, सो we'll see it one by one. Okay, so moment distribution method using symmetry. Now read the first concept that is written on the board. Concept number 1 क्या बोलता है? If the symmetric line passes through the center of the span, read the statement very properly. If the symmetric line passes through the center of the span, then do the analysis for half of the structure. भाई स्पैन के अगर सेंटर से पास कर रहा है, then do the analysis for half of the structure considering the central cut part. जो आप central cut करोगे as a point and not as a joint, इसका क्या मतलब आगे बताता हूं. And find the end moments. For the other part of the structure use the mirror image. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में आपके लिए लेके आते हैं. देखना ध्यान से सारे लोग. Everyone look at it very properly. See here. Suppose this is a continuous beam. Okay. This is a continuous beam. Each span is of length L and it is subjected to the vertical load. Let us say UDL throughout. Okay, so what is said? This is A, B, C and this is D. Okay, right? Now what is said? Can you draw the symmetric line? Yes. Can you draw the symmetric line? Look here. Can you draw the symmetric line? Yes. And that symmetric line passes through the central span. दिख रहा है सबको? अब ये बात समझो. तुम बोलोगे सर यहां तो ए पे हिंज है, तो अगर सर ए पे हिंज है तो ये सिमेट्रिक कैसे हो गया? हाउ कैन इट बी सिमेट्रिक? तो आपका जवाब क्या है समझो. व्हेन यू अप्लाई द वर्टिकल लोड और यू मूव नहीं कर रहा है तो भाई मेरे द रिएक्शन विल ऑलवेज बी वर्टिकल. तो मैंने तुमको पहले भी बोला था जब मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सिमेट्री यूज करके तुमको करा रहा था, इससे पहले वाले केस, मतलब जब फ्रेम एनालिसिस मैंने तुमको सिमेट्री यूज कराया था तो मैंने तुमको बोला था कि जब सपोर्ट रिएक्शन निकाल लोगे तब तुमको सिमेट्री देखना है, राइट? तो हमको यहां पे साफ दिख रहा है द रिएक्शन विल बी वर्टिकल. यस, सो द रिएक्शन विल बी वर्टिकल. आप देखो अबाउट द सेंटर देयर इज अ मिरर इमेज. दिख रहा है सबको? अबाउट द सेंटर देयर इज अ मिरर इमेज. पहला बात. तो अब आपको क्या करना है? आपको एनालिसिस सिर्फ आधे स्ट्रक्चर का करना है. यू नीड टू एनालाइज ओनली द हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर? यू नीड टू एनालाइज ओनली द हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर. तो देखो हम कितना एनालाइज करेंगे. वी आर गोइंग टू एनालाइज ओनली द हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर. कैसे देखो, इधर आपका सपोर्ट और इधर एक आया पॉइंट. अब यहां पे क्या है? ये अगर पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी है, तो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं सी डैश. ये लेंथ एल है, ये लेंथ आपका L/2. ठीक है. अब यहां पे अंतर क्या होगा? मान लो जब आप एनालिसिस कर रहे हो, मान लो पूरे का स्टिफनेस KBC है, मतलब BC पूरे के स्पैन का स्टिफनेस KBC है, तो आपको जो आधा पार्ट कट हुआ उसका स्टिफनेस मानना है KBC/2. इज इट क्लियर? मतलब यह है कि जब तुमने आधे पार्ट का एनालिसिस किया, व्हेन यू आर एनालाइज द हाफ ऑफ द पोर्शन, जब आप आधे पोर्शन का एनालिसिस कर रहे हो, देन इन दैट केस जो भी सेंट्रल स्पैन का स्टिफनेस होगा इन द कट सेक्शन, इट विल बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टिफनेस. वो अपने ओरिजिनल स्टिफनेस का क्या होगा? आधा होगा. तो अब आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू एनालाइज दिस हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है, आप इसके लिए एनालिसिस करोगे. कैसे करेंगे हम आगे बताएंगे. यू आर गोइंग टू एनालाइज हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है, आप एंड मोमेंट निकालोगे. यू विल कैरी आउट द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट? यू विल फाइंड द एंड मोमेंट्स
और जो भी एंड मोमेंट आएगा दूसरे पार्ट के लिए वी विल यूज द मिरर इमेज. फॉर द अदर पार्ट वी आर गोइंग टू यूज द मिरर इमेज. इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आया सबको? राइट. तो मैंने आपको क्या बोला? इफ द सिमेट्रिक लाइन passes through central span, then do the analysis of half of the structure considering the central cut part as a point and not as a joint. वो कोई joint नहीं है, that is just a point, right? Such that, एक point और मैं ऐड करूंगा, such that, यहां पे एक और मैं पॉइंट ऐड करता हूं आपके लिए. क्या ऐड कर रहा हूं? such that stiffness of the central span is half of its original value. Is half of its original value. Is it clear to everyone? ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? बोलो बेटा. Yes. Is this point clear to everyone? ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए बढ़िया. Now let us look at the next part. तो ये आपका पहला डायग्राम बना. This is the first diagram. अब मान लो ये बीम था. Let us go for the frame. मान लो आपको कोई फ्रेम दे रहा है. Let us suppose any frame is there. Okay? Let us suppose any frame is there. The frame is symmetric. Let us say this is 2 meter, or let us say L. Why to use 2 meter? L. And any load is there. Now, if I draw the central line, अगर मैं central line बनाऊं, if I draw the central line, then that central line will pass such that you can see the symmetry. Can everyone see the symmetry? बोलो हाँ या ना? क्या सारे लोग symmetry देख पा रहे हो? Can everyone see the symmetry? Tell me yes or no. Yes. तो अब आपको क्या करना है भाई? आपको सिर्फ आधे पार्ट का एनालिसिस करना है. You need to analyze only the half part of the structure. आपको सिर्फ आधे पार्ट का एनालिसिस करना है. You need to analyze only the half part of the structure. ठीक है? आपको सिर्फ आधे पार्ट का एनालिसिस करना है. Okay? Is it clear? So you need to analyze only the half part of the structure, such that the stiffness of the central span is half of its original value. Right? You will carry out the moment distribution method for this part. आप सिर्फ इतने पार्ट का moment distribution method करोगे. Right? You are going to do the moment distribution method only for this part. Is it clear? सिर्फ इतने पार्ट का करोगे और end moment निकालने के बाद for the other part you will use the mirror image. Is it clear to everyone? Is this point clear to everyone? बोलो भाई. Is this point clear to everyone? So this is in case of frame. ऐसे आपको दिख रहा है किस में? Frame में. Now there is a special type of frame that is a box frame. कभी सुना है इसके बारे में? There is a special type of frame. That is box frame. There is a special type of frame that is a box frame. ठीक है? Box frame in the form of a box. So a box frame can be symmetric about one axis or it can be symmetric about two axes. Let me show you. देखो यहाँ पे. There is a box frame. The box frame can be symmetric about one axis. It can be symmetric about both the axes. It can be symmetric about one axis. It can be symmetric about both the axes. So let me draw the diagram, you will understand. So let us say this is one axis. This is another axis. This is one axis. This is the another axis. Okay. Now, if I apply the load, then only you can understand whether it is symmetric or asymmetric. And whether it is symmetric about one axis
or it is symmetric about both the axes. Okay, see here, देखो यहां पे ध्यान से। तो बेटा मेरे मान लो कि आपने लोड कुछ इस तरीके से लगाया। लेट अस से you have applied the load, you have applied the load like this. You have applied the point load. Let us say you applied the point load. Okay, you have applied the point load P on both sides, and also you have applied the UDL on CD. Now if I look here, there are two axes, XX or YY, XX and YY. Now look at the diagram and tell me this loading condition is symmetric about one axis or it is symmetric about both the axes. Tell me first, this loading diagram is symmetric about one axis or it is symmetric about both the axes? Yes, tell me first, this loading diagram is symmetric about one axis or it is symmetric about both the axes? Yes, we can clearly see it is symmetric about YY, but it is not symmetric about HH. It is not symmetric about HH. Is it clear? So how we are going to analyze? We are going to analyze only the half of the structure. By it is symmetric about one axis, we are going to analyze only the half of the structure. So what I am writing here? If the box frame is symmetric about one axis, then if the loading diagram is symmetric about one axis, then half of the frame is analyzed. सिर्फ आधा पार्ट एनालाइज करोगे और बाकी पार्ट ले क्या करोगे? मिरर इमेज। जो भी आपका एंड मोमेंट आएगा उसका मिरर इमेज कर देंगे। तो देखो यहां पे सारे लोग, सो आपको मैंने क्या बोला? यू आर गोइंग टू एनालाइज ओनली द हाफ पार्ट। तो चाहे तुम लेफ्ट पार्ट ले लो, चाहे तुम राइट पार्ट ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट तुम्हारा ए था, ये डी था, इसको बोल दिए बी डैश, इसको बोल दिए सी डैश। नाउ दिस इज द यूडीएल, राइट, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट लोड। इज इट क्लियर? तो आप सिर्फ इतना पार्ट का एनालिसिस करोगे, लेकिन जब तुम ऐसा किए तो सी डैश और बी डैश कोई ज्वाइंट नहीं है, इट इज अ पॉइंट। और इसका स्टिफनेस क्या हो जाएगा? इट इज के डी सी बाई टू, इट इज के ए बी बाई टू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा, ये पॉइंट समझ में आया सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो आप जो एनालिसिस किए, आप सिर्फ इतने पार्ट का एनालिसिस किए। देखो, जो एनालिसिस का पार्ट है उसको मैं बॉक्स में डालते जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। सो दिस इज द ओनली पार्ट दैट यू आर गोइंग टू एनालाइज, वेयर सी डैश एंड बी डैश इज नॉट अ ज्वाइंट, it is just a point, right? And the stiffness of the cut part is half of its original value. जो उसका original value उसका आधा। Is it clear? ये बात समझ में आ गया? चलिए, now look at the second one. If I say the load is applied like this, symmetric देखना है भाई दोनों एक्सिस से। We need to see the symmetry from both the axes. देखो यहां पे, तो मान लो आपने लोड लगाया P का, that's it, बस इतना लगा दिया। Now, if I see both the axes, whether it is HX or you have taken that YY, so let us take that YY, and the other is HX. So can you see that the loading is symmetric about both the axes? The frame loading is symmetric about both the axes, whether you take HX or whether you take YY. The loading is symmetric about both the axes. लोडिंग आपके दोनों एक्सिस पे सिमेट्रिक है या नहीं है? द लोडिंग इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सेस एज वेल एज वाई वाई। तो जब भी ऐसा केस आए, जब फ्रेम, द बॉक्स फ्रेम इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, इफ द बॉक्स फ्रेम इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, then not
हाफ 1/4 ऑफ द स्ट्रक्चर इज एनालाइज, 1/4 स्ट्रक्चर का एनालाइज होगा, बाकी पार्ट स्ट्रक्चर का एनालाइज नहीं होगा. द अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट एनालाइज. इज इट क्लियर टू ऑल? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? तो इसको मैं शो करता हूं, आपको बताता हूं. देखो यहां पे, देखो यहां पे, इफ द बॉक्स फ्रेम, if the box frame is symmetric about both the axes, then 1/4 of the frame is analyzed. 1/4 of the frame is analyzed. ठीक है. जैसे मान लो हम कोई भी एक ले ले, मान लो 1/4, ये वाला ए वाला पार्ट, सिर्फ हम इतना पार्ट ले रहे हैं 1/4. we have to take 1/4, right? so we have to take 1/4 of the structure. look here, सिर्फ 1/4 लोगे आप. this is the 1/4. This point is A, this is D dash, this is B dash. Is it clear? अब आपने क्या किया, आपने बस 1/4 of the structure को एनालाइज किया है. You have analyzed only this portion. That's it. आप सिर्फ 1/4 of structure एनालाइज करोगे और बाकी के लिए आप क्या यूज कर दोगे, मिरर इमेज. ठीक है. तो यहां पे स्टिफनेस क्या हो जाएगा, KAB/2. अदर साइड स्टिफनेस इज व्हाट, KAD/2. The other side stiffness is KAD/2. भाई दोनों पार्ट कट हुआ ना, तो दोनों का स्टिफनेस आधा आधा हो गया. Is it clear? So this is your first concept where you can use symmetry to find the moment distribution method. जहां मैंने पहले क्या बोला, what I've told in the first, कि अगर आपका जो सेंट्रल पार्ट है, जो सेंट्रल लाइन है, अगर उस स्पैन के मिड से पास कर रहा है, तो आपको करना क्या, यू नीड टू कंसीडर द हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर द एनालिसिस. और जो पॉइंट, जो आपका पार्ट कट हुआ है, दैट इज जस्ट अ पॉइंट, राइट? और जो आपका स्पैन कट हुआ है, उसका स्टिफनेस ओरिजिनल का आधा हो जाएगा. ठीक है, चाहे वो आपका बीम हो, चाहे वो आपका फ्रेम हो, चाहे वो आपका बीम हो, चाहे वो आपका फ्रेम हो. नेक्स्ट पार्ट मैंने क्या बोला कि अगर बॉक्स फ्रेम है, इफ देयर इज अ बॉक्स फ्रेम, राइट? सो इफ द बॉक्स फ्रेम इज सिमेट्रिक अबाउट वन एक्सिस, if the box frame is symmetric about one axis, then we are going to analyze half of the structure. If the box frame is symmetric about both the axes, then we are going to analyze 1/4 of the structure. Is it clear to everyone? Bolo beta, is this point clear to everyone? Yes? Concept number 1 सबको समझ में आ गया? Is the concept number 1 clear to all? Yes, बोलो यार. Is it clear? पक्का श्योर? लॉक कर दे, आगे बढ़े. ओके, सो विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑन दिस, बट पहले एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद. ओके, रीड द कॉन्सेप्ट नंबर 2. रीड द कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है दैट इफ द सिमेट्रिक लाइन पासेस थ्रू द सेंट्रल सपोर्ट, पासेस थ्रू द सेंट्रल सपोर्ट, अगर सिमेट्रिक लाइन पास कर रहा है थ्रू द सेंट्रल सपोर्ट, देन डू द एनालिसिस फॉर हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर. एनालिसिस किसका करो? आधे स्ट्रक्चर का करो. कंसीडरिंग द सेंट्रल सपोर्ट एज अ फिक्स सपोर्ट. सेंट्रल सपोर्ट को क्या करना है? फिक्स सपोर्ट मानना है. ठीक है, और बाकी के लिए मिरर इमेज. तो लेट अस सी दिस, लेट अस सी दिस इन टर्म्स ऑफ डायग्राम. लेट अस सी दिस इन टर्म्स ऑफ डायग्राम. लेट अस से दिस इज अ कंटिन्यूअस बीम. लेट अस से दिस इज अ continuous beam. Let us say this is a continuous beam, right? A, B, C, D, E. Okay, it is subjected to UDL. It is subjected to UDL throughout. It is subjected to UDL throughout, right? Length of each is L. And the load intensity is W kilonewton per meter throughout. Okay, now see here, if I draw the central line, अगर मैं central line बनाऊं, if I draw the central line, then that central line will pass through the support C. बोलो हाँ या ना? अगर हम central line बनाते हैं
तो सेंट्रल लाइन इज पासिंग थ्रू द सपोर्ट सी, तो क्या लिखा, अगर सेंट्रल लाइन पासेस थ्रू द सेंट्रल सपोर्ट देन डू द एनालिसिस ऑफ हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर कंसिडरिंग द सेंट्रल सपोर्ट एज अ फिक्स सपोर्ट, कंसिडरिंग द सेंट्रल सपोर्ट एज अ फिक्स सपोर्ट। तो आपको जो एनालिसिस करना है वो सिर्फ हाफ का करना है। यू आर गोइंग टू एनालाइज ओनली द हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर कंसिडरिंग द सेंट्रल सपोर्ट एज फिक्स सपोर्ट। अब कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड ही लोगे, आप राइट साइड भी ले सकते हो, कोई आपका कंपल्शन नहीं है। इज इट क्लियर? देयर इज नो कंपल्शन। इज इट क्लियर? तो अब देखो यहां पे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। द लेंथ इज एल, द लेंथ इज एल, इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल। बस अब तुम इतने पार्ट का एनालिसिस करोगे, यू आर गोइंग टू एनालाइज ओनली दिस पार्ट एंड फॉर द अदर पार्ट यू आर गोइंग टू यूज द मिरर इमेज। दूसरे पार्ट में मिरर इमेज यूज करोगे। स्टिफनेस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्पैन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो पड़ा है वो एंड्स पे पड़ा है, राइट? तो स्टिफनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिफनेस विल बी सेम, राइट? द स्टिफनेस विल बी सेम। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया, राइट? तो ये तो बात हो गया किसका, ये तो बात हो गया आपका बीम का। दिस इज द पॉइंट फॉर बीम। ओके, नाउ लेट अस टॉक फॉर द फ्रेम। लेट अस टॉक फॉर द फ्रेम। देखो यहां पे, लेट अस टॉक फॉर द फ्रेम। लेट अस से this is a frame. Let us say this is the frame. Okay, this is the frame. The points are A, B, C, D, E and F. Okay, any load, let us say this is the load, right, such that lengths are L, 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 L. All the lengths are L for the beams and columns, right? So now if I draw the central line, if I draw the central line, if I draw the central line, then that central line will pass through the central column. Can everyone see that? That central line will pass through the central column and that is a central support. देखो ना यार, A, E, C, central support क्या है? E है ना? Yes, so it is passing through the central support. So what do you need to do? You are going to analyze only the half of the structure, considering the central point as a fixed support, right? तो यहां पे हम क्या करते हैं in the frame? What we do in the frame, in case of the frame, we take the analysis only till the joint connecting beams and columns. We take the analysis only from the joint connecting beams and column. देखना ध्यान से, देखना ध्यान से जो बोलना चाह रहे हैं। This is the point A. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज अ पॉइंट बी, दिस इज अ पॉइंट सी। अब तुम क्या करोगे फ्रेम में, जब भी ऐसा सिमेट्री दिखेगा इसी को मानोगे फिक्स सपोर्ट, बिकॉज द कॉलम आप यहां पे शो नहीं करोगे। किसके लिए शो करोगे? लेफ्ट के लिए, राइट के लिए? किसी के लिए नहीं। सो यू आर जस्ट गोइंग टू शो इट, यू आर जस्ट गोइंग टू शो इट एज अ फिक्स सपोर्ट एट द पॉइंट ऑफ द बीम एंड कॉलम जंक्शन, राइट? एंड शो द लोडिंग, दैट्स इट। अब बस इतने पार्ट का एनालिसिस करोगे। यू आर गोइंग टू एनालाइज ओनली दिस पार्ट, आप सिर्फ इतने पार्ट को एनालाइज कर रहे होगे। इज इट क्लियर? यू आर गोइंग टू एनालाइज ओनली दिस पार्ट, और जो रिजल्ट आया, जो आपका एंड मोमेंट आया, वो एंड मोमेंट को यूज करके, राइट, अगर आपको दूसरे साइड लिखना है तो आप मिरर इमेज यूज कर सकते हो, ठीक है? तो अब यू आर रेडी फॉर द कॉन्सेप्ट, यू आर रेडी विद द कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है? तो सेकेंड कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला कि अगर आपका जो सेंट्रल लाइन है वो सपोर्ट से पास कर रहा है तो आधे पार्ट का एनालिसिस करोगे। कैसे करोगे? जो सेंट्रल पॉइंट है उसको क्या मानोगे? सेंट्रल सपोर्ट है उसको क्या मानोगे? दैट इज अ फिक्स सपोर्ट, राइट? और फिक्स सपोर्ट मान के आप एनालाइज करोगे, राइट? तो दोनों में देख ले, बीम्स और फ्रेम में। और मेथड नंबर 1 में क्या देखा कि भाई मेरे दैट इज यू हैव टू कंसीडर दैट एज अ पॉइंट, और जो स्पैन आपका कट हुआ उसका आधा वैल्यू आप आगे एनालिसिस में लेके आओगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? बोलो भाई। यस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, because we are going to start with the numericals. So any doubt anyone is having? Chaliye, okay, so let's proceed. So this is the first numerical. This came in GATE 2014. This came in
दिस केम इन गेट 2014, एकदम ऐसा ही आया था, गेट 2014 में आया था। देखो फ्रेम देखो, साफ लिखा था वहां पे, यूजिंग सिमेट्री डिटरमाइन बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब जो लोग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं उनके लिए तो बहुत टफ है, उनके लिए बहुत टफ है, लेकिन जो लोग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए बहुत आसान है। हार्डली 30 मिनट्स टू 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, हार्डली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट एंड यू कैन गेट योर आंसर। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो देखो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2। सिमेट्री में कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगेगा या कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगेगा, बोलो। विच कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड, विल इट बी कॉन्सेप्ट नंबर 1 और विल इट बी कॉन्सेप्ट नंबर 2? बोलो यार, कौन सा अप्लाई करें, 1 या 2? 2 अप्लाई करें, बिकॉज इफ आई ड्रॉ द सेंट्रल लाइन, that central line will pass through central support. Everyone can see that? Yes. तो हम एनालिसिस किसके लिए करेंगे, सिर्फ आधे पार्ट के लिए। वी आर गोइंग टू एनालाइज ओनली द हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर, क्योंकि हमको सी चाहिए, चाहे तुम इधर का लो, चाहे तुम इधर का लो, चाहे तुम लेफ्ट पोर्शन लो, चाहे तुम राइट पोर्शन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। आंसर वही आएगा, ठीक है। सो लेट अस टेक द लेफ्ट पोर्शन, right? So let us take the left portion. Okay. So see here, we are going to analyze this part of the structure, the central point that is C, उसको हमको सपोर्ट बनाना पड़ेगा, that is the fifth support। ये मैं नहीं बोल रहा assumption, ये आपका शॉर्टकट तरीका बोल रहा है, ठीक है। एंड देयर इज अ यूडीएल। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द यूडीएल? 24 किलोन्यूटन पर मीटर। अब एक चीज ध्यान देना है यहां पे, अगर एक भी गलती किया तो आंसर गलत हो जाएगा। दिस लेंथ इज 8 मीटर, द बीम लेंथ, कॉलम लेंथ इज 6 मीटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 4i एंड फॉर द AB इट इज I। So this is the structure we are going to analyze। और मेरे ख्याल से अगर हम सही से स्ट्रक्चर एनालाइज करें तो बेंडिंग मोमेंट एट सी तुरंत आ जाएगा। Yes or no? I can get directly the bending moment at C. Right? If I analyze the structure properly। चलिए शुरू हो जाइए। क्या है पहला स्टेप? What is the step number 1? बाकी स्टेप तो वही है जो पहले किए थे। What is the step number 1? What is the step number 1? बोलो, what is the step number 1? Step number 1 क्या है बताओ भाई? What is the step number 1? What we need to do? We need to find fixed end moment. Step number 1 is fixed end। we need to find fixed end moment। तो भाई मेरे fixed end moment निकालना है तो 2 स्पैन है, दोनों को सेपरेट कर दो। पहले 2 स्पैन है, दोनों को सेपरेट कर दो। आपको पता हम टेबुलर फॉर्म में चलेंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट बात करते हैं भाई, हम तो बिना टेबल के बात करेंगे, बिना टेबल के एनालाइज करेंगे, है ना। तो अगर टेबल से एनालाइज नहीं करोगे तो एकदम साइन कन्वेंशन से चलने का जरूरत ही नहीं है, आपको बस लोड देखना है, डायरेक्शन देखना है, राइट। सो दिस इज AB, दिस इज BC, द लेंथ ऑफ BC इज 8 मीटर एंड the member BC, that is the fixed beam BC, is subjected to the UDL of 24 kilonewton per meter, right? 24 kilonewton per meter। So now due to this there will be fixed end moment। क्या होता है फॉर्मूला? What is the formula? Tell me first, what is the formula? It is nothing but WL square by 12। yes or no? WL square by 12। तो W कितना? 24, लेंथ कितना? 8 का होल स्क्वायर बाई 12, राइट। सो वी कैन राइट लाइक दिस, 12 2 जा 24, 64 2 जा 128 किलो न्यूटन मीटर।
तो अगर लेफ्ट में 128 है तो राइट में भी 128 होगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, दोनों साइड WL² / 12 होता है। और AB पे क्या होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट? व्हाट विल बी द फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर AB? व्हाट विल बी द फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर AB? टेल मी, व्हाट विल बी द फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर AB? इट विल बी 0। AB पे फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा? इट विल बी 0, राइट? एकदम। सो फॉर द फिक्स्ड एंड, फॉर द AB द फिक्स्ड एंड मोमेंट इज 0, राइट? चलो, सो दिस इज स्टेप नंबर 1. This is step number 1 to find the fixed end moment, to determine the fixed end moment. चलिए, what is the next step? What is the next step? क्या निकालेंगे अगले स्टेप में? What is the step number 2? Step number 2 is to find the distribution factor. Step number 2 is to find the distribution factor. हाँ भाई, फटाफट distribution factor निकालिए। आई ई सब ध्यान से, लेंथ वैन सब ध्यान से, क्योंकि अगर एक भी गलती किया सब गलत हो जाएगा, है कि नहीं? एकदम, एक भी चीज गलती नहीं करना भाई, गलती हो गया प्रॉब्लम हो जाएगा। यस, बताइए बताइए बताइए। वी नीड टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो कौन से ज्वाइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालोगे? कौन से ज्वाइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालोगे? टेल मी, एट विच ज्वाइंट यू आर गोइंग टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? जहां पे एक से ज्यादा मेंबर है, और वो कौन सा ज्वाइंट है? वो बी ज्वाइंट है, राइट? सो ज्वाइंट इज बी, ज्वाइंट इज बी. व्हाट आर द मेंबर्स? व्हाट आर द मेंबर्स? Members are what? One is BA, the other is BC. So one is BA, the other is BC. So what next? What is the stiffness? What is the stiffness? Stiffness क्या होगा? देखो यहाँ पे, B, far end is fixed, right? So I is I only, but the length is 6 meter. So क्या लिखोगे? 4EI divided by 6, यही लिखोगे? Yes or no? चलो अगला देखो, फॉर BC far end is fixed, so 4EI by L. Now instead of I there is a 4I and the length is 8 meter. So what you are going to write? 4E into 4I divided by 8, यही लिखोगे ना? तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2EI हो गया, ये हो गया 2EI, ये हो गया 2EI, राइट? और ये कितना हो गया? व्हाट इज दिस? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है? तो अगर आप समेशन स्टिफनेस करते हो, इफ यू गो फॉर समेशन स्टिफनेस, इट विल बी व्हाट? 2y3i प्लस 2EI, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, राइट? 8EI बाई 3, 8EI बाई 3 होगा कि नहीं होगा? इट इज 8EI बाई 3. तो अगर अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दैट इज S बाई समेशन S, तो ये क्या होगा? देखो तो, 2EI बाई 3 डिवाइडेड बाई 8EI बाई 3, 2EI बाई 3 डिवाइडेड बाई 8EI बाई 3, क्या हो रहा है आंसर? बोलो भाई, व्हाट इज द आंसर? 1/4. इट इज 1/4, राइट? अगर हम अगला बात करते हैं BC के लिए, BC के लिए तो क्या होगा? 2EI डिवाइडेड बाई 8EI बाई 3, 2EI डिवाइडेड बाई 8EI बाई 3, साफ दिख रहा है, आना चाहिए 3/4, क्योंकि टोटल सम 1 होना चाहिए. इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो ये सब गलती मत करना, अगर ये सब गलती हुआ तो सब बेकार, ठीक है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ही गलत निकाले हो तो कभी रिजल्ट आगे सही नहीं आ सकता. एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? प्लीज आस्क. कोई भी डाउट है किसी को इसमें पूछ लो भाई. एनी डाउट यू आर हैविंग टिल हियर, प्लीज आस्क. बोलो भाई, एनी डाउट? कोई भी डाउट है किसी को पूछ लो भाई. क्लियर है सबको यहां तक? यस, इट इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. सो स्टेप नंबर 3 इज टू फाइंड द एंड मोमेंट्स, फाइनल एंड मोमेंट्स, दैट इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट. और यहीं पे तो मेरा गेम हो जाएगा. फाइनल एंड मोमेंट्स, फाइनल एंड मोमेंट्स. हाँ भाई, तो क्या तरीका है? सबसे पहले जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है, जो
फिक्स्ड एंड मोमेंट जब निकाले थे तो जो एंड मोमेंट आया था वो डायग्राम बना देंगे. वी विल ड्रॉ दैट डायग्राम. वी विल ड्रॉ दैट डायग्राम जो हम निकाले थे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड मोमेंट. जो हम निकाले थे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड मोमेंट. विल ड्रॉ दैट डायग्राम जो हम निकाले थे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड मोमेंट. ओके, देखिए यहां पे ध्यान से. सो दिस इज ए बी बी सी. At BC there is a moment of 128. At CB there is a moment of 128. ये बात हम जानते हैं, ये हम देखें. तो अब मेरा काम है रिलीज करना. तो किसको रिलीज करेंगे बताओ तुम. किसको रिलीज किया जाए. किसको रिलीज किया जाए. ए को, बी को, सी को. भाई मेरा सबसे पहला स्टेप बोलता है दैट रिलीज द एंड सपोर्ट. लेकिन कंडीशन क्या बोलता है, अगर रिलीज करना चाहिए तो, अगर वो फिक्स नहीं है तो. बट इफ यू लुक एट द डायग्राम, द बोथ द सपोर्ट ए एंड सपोर्ट सी आर ऑलरेडी फिक्स. तो भाई अगर वो फिक्स है तो रिलीज करने का क्या जरूरत है. अगर वो पहले से ही फिक्स है तो रिलीज करने का क्या जरूरत है. कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. इफ इट इज ऑलरेडी फिक्स देन व्हाट इज द नीड टू रिलीज इट, राइट. तो हम डायरेक्ट किसको रिलीज करेंगे, बी को रिलीज करेंगे. वी आर गोइंग टू रिलीज बी. Yes or no? We are going to release B. We are going to release B. Release B. तो क्या तरीका बताएं, पहले डायग्राम बना दो. सबसे पहले डायग्राम बना दो. वट एवर द डायग्राम इज, ड्रॉ द डायग्राम. जो भी डायग्राम है, जैसा भी डायग्राम है, पहले वो डायग्राम बना लीजिए. ठीक है, ड्रॉ दैट डायग्राम. ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपर्ली. ओके, तो यहां पे आपका रिलीज दिखाना है, तो इसको रिलीज के तरीके से दिखाइए. ओके, यहां पे आपका रिलीज दिखाना है भाई. यस और नो, यू नीड टू शो द रिलीज स्ट्रक्चर. देयर इट्स अ फिक्स. ठीक है, अब देखो यहां पे, देखो यहां पे ध्यान से. दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी. पहले जो एंड मोमेंट है उसको एज इट इज शो कर दो. यहां पे सी पे आपका एंड मोमेंट था 128 और बी था 128. तो विद दिस डायग्राम व्हाट इज द नेट मोमेंट एट, व्हाट इज द नेट मोमेंट एट बी. बी पे नेट मोमेंट कितना है, व्हाट इज द नेट मोमेंट एट बी. बोलो यार, व्हाट इज द नेट मोमेंट एट बी. 128. किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर हमको बैलेंस करना है, अगर हमको बैलेंस करना है तो हमको क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा दोनों पे, क्योंकि इट्स अ रिजिड जॉइंट. तो दोनों पे हमको क्लॉकवाइज मोमेंट देना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना. यस. लेकिन किस तरीके से, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. आपको 128 का क्लॉकवाइज मोमेंट बी पे लगाना है. यू नीड टू अप्लाई द क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ 128 एट बी, बट इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. सो फॉर बी से, फॉर बी ए इट इज 1/4. सो फॉर बी सी इट इज 3/4, राइट. So for BC I will be applying 128 into 3/4. For BA it is 128 into 1/4. Is it clear to everyone? ये पॉइंट समझ में आया. मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से. भाई मेरे, आपने एंटी क्लॉकवाइज नेट मोमेंट देखा बी पे. यू हैव सीन द नेट मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज 128 एट बी. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अप्लाई द ऑपोजिट मोमेंट, दैट इज द क्लॉकवाइज मोमेंट एट बी, राइट. But the B consists of two members, that is BC and BA. So that clockwise will be distributed to both BC and BA. वो clockwise दोनों BC और BA पे जाएगा. Yes or no? And if it is done, भाई मेरे BC का distribution factor, what is the distribution factor of BC? 3/4. So 128 into 3/4. For BA it is 128 into 1/4. Is it clear to all? ये point समझ में आ गया. Okay. So 4 2 ja 8, it is 32. So if this is 32, this will be 96. Yes or no? This will be 96. Okay. So this is the moment you have applied to release B. The far end is fixed. The far end is fixed. So what is the carry over moment? Carry over moment कितना होगा? आधा. 96 का आधा. That is 48.
32 का आधा, दैट इज 16। ठीक है, तो आई थिंक आपका आंसर आ गया, आई थिंक आपका आंसर आ गया। यू गॉट योर आंसर, यू गॉट योर आंसर, यस और नो? यू गॉट योर आंसर। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी? 128 प्लस 48, 128 प्लस 48। सो देखो यहां पे फाइनल डायग्राम बना दे रहे हैं आपके लिए। लेट मी ड्रॉ द फाइनल डायग्राम, लेट मी ड्रॉ द फाइनल डायग्राम। सी हियर, ओके, सी हियर, this is the fixed, this is the fixed, okay, see here, everyone see it properly। देखो भाई, so this is A, here there is a hinge or simple supported, right? This is a fixed, so A, B, B, C, so at C there is a total moment of, at C there is a total moment of 128 plus 48, that is how much? 128 plus 48, that is how much? 176 kilonewton meter. At B, if I look, this is 32, this will also be 32, 128 minus 96, okay, so 32, 32, 32, 32, and on the other side, same direction, it will be 16. Is it clear to all? ये point समझ में आ गया? So bending moment at C, so bending moment at C is equal to 176 kilonewton meter। भाई ये तो आम आदमी बताता है, ये तो आम आदमी बताता है, गेम तो अब हम खेलेंगे, ये तो आम आदमी बताता है इतना आंसर, गेम तो अब हम खेलना शुरू करेंगे, गेम तो अब हम खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक तुमको सिमेट्री यूज करके अदर पोर्शन में मिरर इमेज कैसे निकलेगा ये अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, गेम तो अब शुरू होगा भाई। अभी तक तो नॉर्मल बात की हम कि ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ठीक है, लेकिन मिरर इमेज कैसे लोगे अब हम आगे बात करते हैं। रेडी फॉर इट, रेडी टू प्ले द गेम? अरे बोलो रे बाबा, यस और नो? ओके, चलो देखो। सो फॉर दैट आई विल बी ड्रॉइंग, फॉर दैट आई विल बी ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो सारे लोग, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, यू आर गोइंग टू लव इट, इट्स माई गारंटी, इट्स माई गारंटी, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। चल भाई देखते जाइए बस अब एकदम राइट। तो आपके पॉइंट्स क्या थे? आपके पॉइंट्स थे ए बी, बी सी, ठीक है, देन सी डी, देन सीई और डीएफ। यही पॉइंट्स थे आपके? बोलो हाँ या ना, यही पॉइंट्स थे ना। अब देखो मेरे पास पहले अप्लाइड लोड दिखाते हैं, और लेंथ आपको दिया हुआ था 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर। बीसी आपका दिया हुआ था 8 मीटर, सीडी आपका दिया हुआ था 8 मीटर, यही दिया हुआ था। आपका यूडीएल लगा हुआ था, द यूडीएल वॉज देयर वॉज अ यूडीएल, और वो यूडीएल कितना था? देयर वॉज अ यूडीएल, और वो यूडीएल कितना था? दैट वॉज 24 किलो न्यूटन पर मीटर था। तो भाई मेरे, अगर मेरे को बीसी बैलेंस करना हुआ ड्यू टू यूडीएल, इफ आई नीड टू बैलेंस द मेंबर बीसी ड्यू टू यूडीएल, तो भाई मेरे 2 पॉइंट लोड आएगा, 2 पॉइंट लोड आएगा बी पे, वर्टिकल ऊपर डायरेक्शन में, रिएक्शन के फॉर्म में। यस और नो? क्या होगा वैल्यू? 24 8 या 192, तो दोनों पे चला गया, कितना हो गया? 96, 96 हो जाएगा, हो जाएगा। अभी हम उस साइड नहीं एनालाइज करेंगे, हम पहले लेफ्ट एनालिसिस कर देंगे, मिरर इमेज फिर उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। तो 96, 96 आ गया, चलिए बढ़िया। अब यहां देखो मोमेंट 16, 32, 32, 176, तो इसको अगर हम अप्लाई करें, दिस इज 16, this is 32, 32, at C it is 176,
तो पहले मिरर इमेज लगा देते हैं, मिरर इमेज पे लगा देते हैं। देखो मिरर इमेज, मिरर इमेज देखना है भाई। आई नीड टू अंडरस्टैंड द मिरर इमेज, आई नीड टू अंडरस्टैंड द मिरर इमेज इन टर्म्स ऑफ मोमेंट। तो आपने पहले 176 देख लिया, फिर उसके बाद उधर 32 है तो इधर ऑपोजिट 32 दिखा, फिर से ऑपोजिट 32 दिखा, राइट, और यहां पे एफ पे ऑपोजिट 16 दिखा। देख लो मिरर इमेज, देख लो मिरर इमेज। सेंट्रल कॉलम पे कुछ नहीं जाएगा भाई, अगर सेंट्रल कॉलम पे कुछ भी गया तो मिरर इमेज नहीं है। सेंट्रल कॉलम पे कोई भी मोमेंट गया तो मिरर इमेज नहीं होगा। नाउ कैन यू एवरीवन सी इट? कैन एवरीवन सी द मिरर इमेज? यस, कैन एवरीवन सी द मिरर इमेज? यस। तो भाई देखो हमने क्या किया, एंड मोमेंट जो लगाया उसका बस मिरर इमेज ले लिया और अदर साइड का बना लिया, ठीक है। तो लेफ्ट एनालिसिस करेंगे, लेफ्ट का सारा रिएक्शन निकाल लेंगे, राइट में उसी को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बीसी को बैलेंस कराओ। तो बीसी मेंबर यूडीएल के कारण तो बैलेंस है, बीसी मेंबर यूडीएल के कारण तो बैलेंस है। नाउ फाइंड द नेट मोमेंट ऑन द मेंबर बीसी। व्हाट इज द नेट मोमेंट, व्हाट इज द नेट मोमेंट ऑन द मेंबर बीसी? व्हाट इज द नेट मोमेंट? ये देखो ये 176 है। व्हाट इज द नेट मोमेंट ऑन द मेंबर बीसी? बीसी पे नेट मोमेंट कितना है? 176 बड़ा है, 32 छोटा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 176 माइनस 32, यहां पे लिख दे रहे हैं नेट मोमेंट ऑन बीसी, ऑन बीसी कितना हुआ? 176 माइनस 32 दैट इज 144। होगा कि नहीं होगा? होगा, बोलो हाँ या ना। अब इस मोमेंट को कौन बैलेंस करेगा? मोमेंट को हमेशा या तो अपोजिट मोमेंट बैलेंस करता है या तो अपोजिट कपल बैलेंस करता है, यही होता है ना। तो अब यहां देखो देयर इज अ नेट मोमेंट, और आप कहीं पे मोमेंट लगा नहीं सकते ऑपोजिट, आपके पास एक ही ऑप्शन है दैट इज अ कपल। सो यू नीड टू टेक अ कपल, ऑपोजिट कपल। सो टेक द ऑपोजिट कपल, ठीक है। तो जब तुम अपोजिट कपल का बात करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 144 डिवाइडेड बाई 8, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 144 बाई 8, 8 1 जा 8, 64, 8 8 जा 64, यहां भी हो गया 18, यहां भी हो गया 18, राइट। सो व्हाट इज द टोटल अपवर्ड रिएक्शन? व्हाट इज द टोटल अपवर्ड रिएक्शन? बोलो बेटा, व्हाट इज द टोटल अपवर्ड रिएक्शन एट द पॉइंट बी एंड एट द पॉइंट सी? बोलो भाई, ये टोटल अपवर्ड रिएक्शन कितना होगा? 96 अप 18 डाउन, सो नेट कितना हो गया? 78 किलो न्यूटन अप। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो भाई यस और नो। बहुत सिंपल वे में चल रहे बेटा, बहुत सिंपल वे में चल रहे। इट इज 78 किलो न्यूटन अप। सिमिलरली इफ आई लुक एट सी, इफ आई लुक एट सी, सो व्हाट इज द नेट? 96 plus 18 that is 114 किलो न्यूटन, that is 114 किलो न्यूटन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बोलो यार। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको यूडीएल के कारण बैलेंस किया, फिर जो नेट मोमेंट आया ऑपोजिट कपल लगा के बैलेंस कर लिया। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में आया तो ऐड कर दिया, अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आया तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में दिखा दिया। समझ में आ गया? यस। तो अब मेरा मेंबर बीसी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। द मेंबर बीसी इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। नाउ ये बात हो गया बीसी का, ठीक है। अब पहले इधर बात कर ले बी ज्वाइंट। तो बी ज्वाइंट पे एट द बी ज्वाइंट जितना अपवर्ड है उतना डाउनवर्ड लगेगा, जितना अपवर्ड है उतना डाउनवर्ड। तो 78 अपवर्ड, 78 डाउनवर्ड। सिमिलरली जितना डाउनवर्ड उतना अपवर्ड, जितना डाउनवर्ड उतना अपवर्ड। होगा, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, राइट। नाउ लुक एट द मेंबर ए बी, लुक एट द मेंबर ए बी। देयर इज अ नेट मोमेंट, देयर इज अ नेट मोमेंट इन द मेंबर ए बी। कैन एवरीवन सी दैट? देयर इज अ नेट मोमेंट इन द मेंबर ए बी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट मोमेंट? नेट मोमेंट ऑन ए बी, net moment on AB. What is the net moment value? What is the net moment on the member AB? बोलो भाई। 32 plus 16, 32 plus 16 that is 48 मीटर।
right? And the length is 6. So this 48 moment will be balanced by the opposite couple. Yes. So the net moment is clockwise. So it will be balanced by the opposite moment, that is the anti-clockwise moment. That is how much? 48 by the length is 6, that is 8. ये भी हो गया आपका 8. Is it clear? Now let us balance it with the symmetry joint. So at the joint B, there is a net left. So balance by the net right. Balance by the net right. Yes or no? Look at the joint C. Look at the joint C. Net right balanced by the net left of 8 kilonewton. Net left of 8 kilonewton. Is it clear to all? Is this point clear to everyone? Tell me first. So now the left part is completely balanced. The left part is completely balanced. Now balance the right. Use the symmetry. Balance the right. Use the symmetry. Balance the right. Use the symmetry. Balance the right. हो गया खत्म. काम खत्म भाई. पूरा बन गया फ्री बॉडी डायग्राम. है बहुत आसान था. बहुत आसान था यार. बहुत आसान था. बस बात वही होता है ना, समझने भर की देरी है. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. यस. तो अब देखो यहां पे इधर आपका 114, इधर भी आपका 114, इधर आपका लेफ्ट में 8, इधर आपका राइट में 8, इधर आपका लेफ्ट में 8, इधर आपका कितना हो गया दैट साइड, दैट इज 78. इधर आपका डाउन हो गया कितना 78, इधर आपका आप कितना हो गया 78, इधर आपका लेफ्ट कितना हो गया 8. दैट्स इट. ओवर. ये आपका हो जाएगा 8. हो गया. बन गया फ्री बॉडी डायग्राम. दैट्स इट. ओवर. But still one thing is unstable. Still one thing is unstable. Can anyone name it? What is unstable? Can anyone name it? What is unstable? कोई बता सकता है क्या unstable है? कोई बता सकता है क्या unstable है? Yes, can anyone tell me what is unstable? Can anyone tell me what is unstable? It is C. Can you look? Left is balanced by the right. Clockwise balanced by the anti-clockwise. But there is a net force upward. There is a net upward force, that is 228. So if there is a net upward force, you need to balance by the net downward force, that is 228 kilonewton. So downward balance by the upward of 228. मजा आ गया? मजा आ गया? Now can you see this central column is a pure axial member. The central column is a pure axial member. It can carry only axial loading, cannot carry any transverse load. That means bending moment on the central column is 0. तो क्या ऑब्जेक्टिव निकल के आया, क्या पॉइंट निकल के आया कि अगर सिमेट्रिकल फ्रेम है, अगर सिमेट्रिकल फ्रेम है तो सेंट्रल कॉलम पे कभी भी बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा. बेंडिंग मोमेंट इन द सेंट्रल कॉलम इज इक्वल टू 0. आई एम रिपीटिंग इट. कैसे लाए हमने क्या देखा एट द सी ज्वाइंट? हमने क्या देखा एट द सी ज्वाइंट? जितना अपवर्ड है उतना डाउनवर्ड नहीं था, तो हमने उतना अप्लाई किया. वो कहा गया सी मेंबर पे. और जब ये सी मेंबर पे गया तो हम क्या देख रहे हैं? सेंट्रल कॉलम इज अ प्योर एक्सियल मेंबर. ये प्योर क्या बन रहा है? एक्सियल मेंबर बन रहा है. इज इट क्लियर? सो विद दिस हमने बहुत जवाब दे दिया. हमने बहुत जवाब दे दिया भाई. व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट ए? व्हाट इज द वर्टिकल रिएक्शन एट ए? व्हाट इज द बेंडिंग, व्हाट इज द horizontal reaction at A? What is the moment at E? What is the vertical reaction at E? What is the horizontal reaction at E? What is the moment at F? What is the vertical reaction at F? What is the horizontal reaction at F? ये सारा जवाब हमने दे दिया है with this free body diagram. All the answers we have given with the help of this फ्री बॉडी डायग्राम. सो मोमेंट एट ए अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है 16 किलो न्यूटन मीटर. इट इज क्लॉकवाइज. ओके. इफ आई टॉक अबाउट द वर्टिकल रिएक्शन एट ए, इट इज 78 किलो न्यूटन अपवर्ड. इफ आई टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, इट इज 8 किलो न्यूटन लेफ्ट. If I talk about the moment at E, it is 0.
it is 0. If I talk about the vertical reaction at E, it is 228 kilonewton upward. If I talk about the horizontal at E, it will be 0, right? If I talk about the moment at F, so moment at F is 16 kilonewton meter anti-clockwise. Vertical at F, 78 kilonewton upward. Horizontal at F, it is 8 kilonewton towards. मजा आ गया? मजा आ गया? बोलो यार, यस और नो? मजा आया फ्री बॉडी डायग्राम में? तो एक बार खुद से इसको फिर से बनाना, एक बार तो अभी समझ लो, खुद से फिर से बनाना एक एक चीज को सोच के। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो है इस कॉलम का। क्या बोल रहा है? नोट। नोट क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है नोट। नोट आपको बोल रहा है कि, नोट आपको बोल रहा है कि इफ द फ्रेम इज सिमेट्रिक, if the frame is symmetric, if the frame is symmetric, then, and one more thing, if the frame is symmetric and the column do not sway, or yeah, structure do not sway, and the structure do not sway, structure do not sway, sway नहीं करेगा, then sway मतलब horizontal में move नहीं करेगा, then the central column can carry only axial loading, full stop. Bending moment everywhere in the column, everywhere in the column is 0. Is it clear to all? बोलो भाई, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रॉपर आपका एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर आपका डायग्राम बना के हम दिखाए हैं विद अ फ्री बॉडी डायग्राम. इज इट क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? हाउ टू यूज द मिरर इमेज. ठीक है, तो इतना पार्ट आज हमने किया. बाकी दिस फ्रेम हम अगले क्लास में या हम डीपीपी सेशंस में कवर कर रहे होंगे. ठीक है, सो डू इट प्रॉपर्ली, रिवाइज कर लो अच्छे से. एंड आपके सारे लेक्चर्स अवेलेबल है. गो टू द प्लेलिस्ट. जो भी आपको वीडियोस चाहिए फॉर डीएससी गेट 2021 और ईएससी 2021 आपको अवेलेबल है ऑन द चैनल. सो जाके अच्छे से पढ़ो. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू मेक इट अ वेल प्लान्ड स्टडी, अगर आप एक अच्छे स्टडी फॉर्मेट में जाना चाह रहे हो तो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. वेदर यू गो फॉर द प्लस और आइकॉनिक, चाहे तुम 6 मंथ्स का लो, 12 मंथ्स का लो, 18 मंथ्स का लो, क्योंकि इतना तो चाहिए, या 24 का लो, इतना तो लो ताकि आपको टाइम मिले पढ़ने के लिए. ओके, और आइकॉनिक ले सकते हो अगर इफ यू नीड अ पर्सनल मेंटर, पर्सनल कोच. ठीक है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. एंड ऑल द नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी गेट सी, राइट? इट इज अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी गेट सी. वहां से आप नोट्स ले सकते हो. और यू कैन ज्वाइन ए पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप to get doubts clarified about my subjects and everything, right, regarding this channel and everything. And अपने doubts आप Facebook पे भी post कर सकते हो, right? There is one more platform where you can post your doubts. That's on the Facebook. That is on the GATE Aspirants MEC CSE. और कोई भी branch ले लो, where it's mechanical, civil, EC, electrical, CS, everyone. It is one of the #1 study channel. और आपके लिए नया इनोवेटिव हमने शुरू किया था, that is इंजीनियरिंग पाठशाला, जहां पे हम नए इनोवेटिव कंटेंट धीरे धीरे अपलोड कर रहे होंगे. राइट, एंड थैंक यू सो मच. तो जो भी लोग चैनल से नए नए जुड़ रहे हो, ठीक है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन. और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. राइट, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.